न्यूज प्रहर के प्रायोजक DN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ के श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, किन्नी शायद ही विवाह की खुशियां कोई ऐसे मनाता है जैसा कि अंडाल के रहने वाले राहुल बनर्जी और उनकी नव विवाहिता पत्नी मौमिता बनर्जी ने बनाई। इन दोनों ने विवाह के बंधन में बंधने के बाद ही समाज सेवा में अपने को लगा दिया। दरअसल विवाह के बाद होने वाले बहुभात की रस्म की सुबह राहुल और मौमिता बनर्जी द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें इन्होंने स्वयं रक्तदान किया। उनके अलावा विवाह समारोह के लिए आए परिवार के अतिथियों तथा इलाके वासियों ने भी रक्तदान किया। करीब 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। राहुल और मौमिता के इस प्रयास को सफल बनाने में पश्चिम बर्धमान जिला ब्लड डोनर्स फोरम और आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सहयोग दिया। एक्चुअली बाচ্চা বলতে আমরা বরাবরই আমি রক্তদান অনুষ্ঠানে যুক্ত একটা ডোনার্স ক্লাব। তো আমাদের নরমালি আমরা জন্মদিনে বিবাহবার্ষিকী আমরা সবাইকে একটা মোটিভেশন আমরা ক্যাম্প করি, যাতে এই ছোটোখাটো অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমরা রক্তদান শিবিরটা আমরা এগিয়ে নিয়ে চলি, তাতে আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কের যে রক্তের সংকট সেগুলো দূর হতে পারে। যেহেতু আমরাও লোককে মোটিভেশন দিয়েছি, সেটা আজ আমার বিয়েতে আমি এই ক্যাম্পটা আয়োজন করেছি, যাতে লোক মানুষ বুঝুক রক্তদান দেওয়া কোনো খারাপ নয় বা কোনো ভয়ের বিষয় কিছু নয়। রক্তদান করলে শরীরে অনেক উপকারিতা আছে, আর একটা দানের মাধ্যমে 3টে মানুষের জীবনও বাঁচবে। খুবই ভালো লাগছে, কারণ এরকম অনুষ্ঠান আমি আগে দেখিনি। আমার হাজব্যান্ড আমাকে অনেক সাহস করেছে। আমি প্রথমে ভয় পেতাম, আস্তে আস্তে ভয় কেটে গেছে। আমি খুশি এই অনুষ্ঠান সহযোগিতা করতে। কোর্ট অর্ডার দিয়েছে যে এই কেসে যেদিন যদি ডেট পড়বে সেদিন কোর্টে হাজির হতে হবে। তো আমরা ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, আপনারা জানেন যে আজকে সিজ ওয়ার্ক আছে, তবুও আমরা যেহেতু কোর্টের নির্দেশ আছে আজকে হাজির হয়েছি। সিজিএম সাহেবের চেম্বারে আমরা এজলাসে আমরা নিজেরা হাজির হলাম এবং অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছি। 26/7 নেক্সট ডেট দিয়েছেন আবার। मंगलवार को आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी अपने पुराने रंग ढंग में दिखाई दिए। दरअसल वह मंगलवार को आसनसोल रेल पार के कंबल वितरण हादसे से संबंधित सुनवाई के सिलसिले में आसनसोल जिला अदालत पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और बीजेपी पार्षद चैताली तिवारी भी थी। कुछ और बीजेपी पार्षद और नेता भी मौजूद थे। जितेंद्र तिवारी जब अदालत परिसर में पहुंचे तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके समर्थन में खूब नारेबाजी की। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कोर्ट में सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र तिवारी ने अपने ऊपर लगे आरोप का अपने तरीके से ही जवाब दिया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर भी सवाल किया। तो কিছু করার নেই, এই শহরকে যারা আছেন দায়িত্বে যারা আছেন, এই শহরের প্রতি যদি ভালোবাসা না থাকে তাহলে তো কিছু করার নেই। এই শহরটাকে কিছু করতে গেলে এই শহরটাকে ভালোবাসতে হবে তো। এবং তৃণমূল কংগ্রেসে যারা ভালো ভালো লোক ছিল, যারা এই শহরটাকে ভালোবাসতো, তাদেরকে সবাইকে সাইড করে দিয়েছে। তাদেরকে আর তাদের কোনো জায়গা নেই। তারা ওয়েট করছে যে কখন এই সরকারটা চলে যায়। অনেক ভালো ভালো লোক ছিল। পূর্ণশশী রায় মনে করে জলের এত ভালো কাজ করতে, সে সাইডে। আচ্ছা বলুন না, অমিতাভ বাসু বিবি কলেজের প্রিন্সিপাল, তাকে আপনি পলিটিক্সে নিয়ে এলেন, কাউন্সিলর করলেন। আচ্ছা একটা কলেজ একটা প্রিন্সিপালকে আপনি কাউন্সিলর করার জন্য নিয়ে এলেন, তো ভালো ভালো लोग के নিয়ে এসেও কাউন্সিলর বানিয়ে রেখে দিল। কি বলবো, এটা ওদের দল যা করছে করুক, কি করুক। एक सवाल के जवाब में उन्होंने आसनसोल के पूर्व सांसद और अब बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी निशाने पर लिया। एक दिन पहले ही बाबुल सुप्रियो आसनसोल का दौरा कर गए थे, डीआरएम से मिले थे और कुमारपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। इसी को लेकर जितेंद्र तिवारी ने बाबुल को घेरा और सांसद रहते उनके गोद लिए गांव की हालत पर भी सवाल पूछा। এই ব্রিজটা কি এমন ছিল যখন উনি সাংসদ ছিলেন বা ভালো সিঙ্গার ছিলেন তখন বিভিন্ন শো করে সেখান থেকে যে অর্থ এসেছিল সেখানে পয়সা করছিল কি? এটা তো ইসকো আর রেল করে দিচ্ছে। তো এখানে পরিদর্শন করা কি আছে? পরিদর্শন যদি করতে হয় তাহলে সিধাবাড়ি গ্রাম, যেটা উনি অ্যাডপ্ট করেছিলেন সাংসদ থাকাকালীন, সেই গ্রামের মানুষ কেমন আছে সেটা গিয়ে পরিদর্শন করুন। পরিদর্শন যদি করতে হয় তো যে তিনজন মারা গেছিল পদপিষ্ট হয়ে, যাদের বাড়িতে এসেছিলেন পাউডার সেন্ট মেখে, তারা সরকারি চাকরি কেন এখনও পেল না? তাদের বাড়িতে সরকারি চাকরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দিয়ে আসুন। এই ফটোশ্যুট করার জন্য এখানে যে কাজ অলরেডি কেন্দ্রীয় সরকার করছে সেখানে নিজের ফটোশ্যুট করার দরকার নেই। তাহলে এই লিডাররা যারা গেছিলেন তারা কি এটা বলছেন যে হ্যাঁ সত্যি গরু পাচার হচ্ছে এই আসানসোলে? প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেস এটা বলুক
যে হ্যাঁ গরু পাচার হচ্ছে, অন্যান্য প্রশ্নের জবাব আমরা পরে দিয়ে দেবো। আর বলুন তো যে যারা এই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে তারা টাকা পয়সা কাকে দেয়? যার হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে, যার কথায় পুলিশ চলে, যার কথায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে, তাদেরকে তারা টাকা দেয়। বিজেপির বিধায়কের কথায় কি পুলিশ চলে? না বিজেপির বিধায়কের কথায় প্রশাসন চলে? তো বিজেপির নেতাকে কেউ পয়সা দেবে কেন? বিজেপি নেতাদের কেউ চাও খাওয়ায় না, জানে যে এদের কোনো ক্ষমতা নেই। এই পুলিশ, ওইখানকার পুলিশ বিজেপি নেতাদের কোনো অল পার্টি মিটিংয়ে ডাকা হয় না। পিস কমিটি মিটিংয়ে বিজেপি বিধায়ককে ডাকা হয় না। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং যেটা সরকারের তরফ থেকে সেটা বিজেপি বিধায়ককে ডাকা হয় না। আপনারা বিজেপি বিধায়কদের, যারা যেখানে বিজেপি বিধায়ক আছে তাদেরকে আপনারা আপনাদের লেভেল থেকে ঠুটো জগন্নাথ করে রাখার চেষ্টা করছেন। আবার একদিকে বলছেন যে বিজেপি বিধায়ককে লোক টাকা দেয়, এটা বিশ্বাস করার মতন কথা? আর অজয় পোদ্দার, আপনি গিয়ে খবর নেবেন যে কুলটিতে যে গোশালা আছে, যেখানে যে গরুরা বৃদ্ধ হয়ে যায় তারপর কেউ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে না, যাদেরকে রাখা হয়, সে গৌশালার সঙ্গে যুক্ত উনি মানে গরুকে পছন্দ করেন না, গো সেবা করেন। তো যে লোক সবসময় গো সেবা করে, গোশালায় গরুদেরকে ঠিকভাবে রাখা যায় সে ব্যবস্থা যারা করে, তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের এলিগেশন আনাটা ঠিক না। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कुल्टी थाना क्षेत्र के न्यामतपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सोमवार की शाम न्यामतपुर के विष्णु विहार में रहने वाले बिट्टू साव का लहूलुहान शव निकट के ही पलास बागान जंगल से मिला था। घटना की खबर पाकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC अभिषेक मोदी, ACP कुल्टी सुकांत बैनर्जी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। घर वालों से बात की, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि 27 साल का बिट्टू साव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। 5 भाइयों में वह सबसे छोटा था। सोमवार की दोपहर वह घर से निकला था, लेकिन उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। उसके भाइयों ने खोजबीन जारी रखी तो रात को घर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित पलाश बागान जंगल में बिट्टू को गिरा हुआ पाया गया। उसके सिर और पीठ से खून बह रहे थे।
तत्काल उसे आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में बिट्टू के भाई विक्रम साव ने बताया कि बिट्टू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह नौकरी के लिए पढ़ाई करने में व्यस्त था। उसे किसने और क्यों मारा ये समझ नहीं आ रहा है। सर मेरा भाई छोटा बिट्टू नाम है इसका, वो 2:30 से 3 बजे समथिंग में सर वो घर से नहीं था, मतलब कहीं हमको लगा कि बाथरूम वगैरह कुछ किया है। तो फिर हम लोग देखे 10-15 मिनट कुछ नहीं, जब खाना खाने टाइम हुआ ना, हम लोग रात में खाना खाते तो खाना खाते देखे बिट्टू नहीं है। उसको बोले हम लोग फ़ोन किए हैं, एक दिन फ़ोन नहीं किया, फिर दोबारा क्यों नहीं किया है। फिर हम लोग सब भाई कॉल करने लगे तो वो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। आधा घंटा हो गया, हम लोग पता नहीं क्या हुआ, हम लोग डर गए, हम लोग फ़ोन नहीं उठा, क्या बात आधा घंटा फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर उनका फ्रेंड लोग को कॉल किया, फ्रेंड लोग भी कॉल उठाया, बोल रहा नहीं मेरे पास नहीं, हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। फिर हम लोग मार्केट तक खोजने चले गए, बाइक लिए देखते चले गए। फिर हमको डरने लगा क्या हुआ। फिर हम मार्केट में देखने चले गए, मार्केट में देख के आए, फिर भी कहीं नहीं मिला। फिर पूछे घर में कि कॉल हो रहा है, बोला नहीं आया। फिर भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, फ़ोन कंटिन्यू जा रहा। फिर हम लोग खोजने लगे इधर उधर। फिर हम लोग खोजा जंगल, हम लोग घर के पीछे जंगल पड़ता है, 200-250 मीटर दूरी पर जंगल जैसा पड़ता है, पुलिस को प्लाज बांध बोलते हैं। उधर खोजने चले गए। उधर खोजने चलते जब अंदर गए ना, तब देखे अंदर में मेरा भाई गिरा हुआ था, सिर में चोट था, मुंह से मतलब थोड़ा लार जैसा कुछ गिरा हुआ था और पीठ में चोट था। तो हम उसको तो उठाए, देखे वो नर्वस था, उठ नहीं पा रहा था, मतलब बेहोश कंडीशन में था। तो मेरा छोटा भाई उसको उठा कर जैसे तैसे घर पर लाए, भाई को फ़ोन किया, वो गाड़ी भेजा, गाड़ी आया, फ्रेंड का गाड़ी आया, गाड़ी में उसको लेकर के हम लोग सिटी हॉस्पिटल ले गए। सिटी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ चेकअप को किया तो वहाँ भी बोल दिया नहीं है, पूरा क्रिटिकल कंडीशन में, नाक बराबर कुछ चांस है। तो हम लोग डर गए। फिर हम लोग वहाँ से एलम भेज दिया, हम लोग एम्बुलेंस द्वारा एलम लेकर के यहाँ पे आ गए। यहाँ पर आए, डॉक्टर से इमरजेंसी वार्ड में चेकअप कराया तो बोला नहीं हो तो डेट कर गया। तो मतलब अब ये थाना में जानकारी ये सब नहीं है? हाँ सर, वो उस समय तो जब देखे ऐसा कंडीशन हो गया, जब मिला, जब सीरियस हॉस्पिटल ले गए तो उसके बाद हम लोग थाना में जानकारी दे दी। आप लोग जो चोट लगा था किस तरह का चोट लगा आप लोग को? सिर पे चोट है, अब लगता है कोई मारा हो रहा है, ऐसा चोट लग रहा है सर। अब पीठ में भी चोट है, घाव जैसा, बड़ा घाव जैसा पीठ में है। सूत्रों का कहना है कि बिट्टू को 2 गोली मारी गई है, एक सिर में जबकि दूसरी पीठ में। सूत्रों के मुताबिक बिट्टू हत्याकांड में इलाके के ही 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये दोनों बिट्टू के रिश्तेदार बताए जाते हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने गोली मारने की बात स्वीकार कर ली है, लेकिन खबर लिखे जाने तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पिछले कुछ दिनों से एक वायरल ऑडियो को लेकर कुल्टी के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार और उनके पुत्र केशव पोद्दार पर राजनीतिक बयानबाजी गर्म है। इस वायरल ऑडियो के जरिए डॉक्टर पोद्दार और केशव का नाम गौ तस्करी में उछाला जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उछालते हुए सोमवार को पुलिस कमिश्नर से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। अब मंगलवार को डॉक्टर अजय पोद्दार ने बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौ तस्करी में उनके और उनके बेटे के नाम उछाले जाने की कड़ी निंदा की और इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का हथकंडा बताया। तथ्यहीन आरोपों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता है। इस चमड़े की जबान से आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर जिसने 50 बरस से लगातार संघर्ष करके यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार लोगों के बीच में आज तक लगातार स्वच्छ छवि के रूप में और एक स्वच्छ डॉक्टर के रूप में हमने काम किया है, वो वहाँ की जनता और हमारे साथी, हमारे कर्मी जानते हैं। जिस तरह से ये 24 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। उस मुद्दे को उठाने के लिए एक स्वच्छ इमेज पूरे जिले में जिसकी है, उसको टार्निश करने से पार्टी को आघात करने का प्रयास किया है। ये मेरे ऊपर आघात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पे आघात करने का प्रयास किया गया है। ये आघात को पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कॉन्स्पिरेसी है और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सरकार किसकी है, पुलिस किसकी है। जिसकी सरकार, जिसकी पुलिस, उसके बीच में क्या बीजेपी का आदमी सांस भी ले सकता है? उसे एक स्ट्रीट कॉर्नर करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है, किंतु वो लोग रातों रात स्ट्रीट कॉर्नर कर सकते हैं। जब इच्छा तब मैदान में उतर सकते हैं। भाजपा को 4 दिन पहले भी ये काम करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, लीगल तरीके से नहीं दी जाती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं बंगाल में कोई भी काम? ये तो गौ तस्करी के लिए तो गौ माता हम लोग कहते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जिसकी पूजा सुबह पहले हम लोग करते हैं, वो कोयला का काम हो या लोहा का काम हो या बालू का काम हो, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कौन कर रहा है और कहाँ तक पैसा जा रहा है। पार्टी के अंदर में जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, ये उनका मैटर है, ये उनकी
अनुशासनिक कमेटी जो होती है उसके तहत वो पार्टी के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इन 2 लोगों के अलावा भी जो कॉन्स्पिरेटर है पार्टी किसी को नहीं छोड़ेगी। पहले तो उन्हें दल से बाहर, उसके बाद डिफेमेशन सूट, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है और बाकी जितनी कार्रवाई होगी। পশ্চিম বাংলার গভর্নমেন্ট, পুলিশ পশ্চিম বাংলার, এই দুটা আপনি তো এখানকারই সমস্ত মানে চতুর্থ স্তম্ভ আপনারা এই ডিবুডি চেকপোস্ট থাকে শ্রীরামপুর, এরামপুর যাকে বলে, এই পুরো এলাকাটা আপনার জানা। কার চলে ওখানে, কাদের কাছে যায় টাকা? আমরা তো চেয়েছি পুরোভাবে তদন্ত হোক, সিবিআই হোক, একটা একটা খাঁটিনুটিকে ধরা হোক। আমরা তো এটাই চেয়েছি। আমরা শুধু গল্প নেই, ছড়ানো নেই, আমরা তদন্ত চেয়েছি কি মূলভাবে তদন্ত হোক। কারা দোষী, কোনখানে টাকা যাচ্ছে, কারা কারা অভিযোগ, যারা অভিযোগ করছে তাদের কাছে টাকা যাচ্ছে কিনা, এখান থেকে আরম্ভ করে কলকাতা অবধি টাকা যাচ্ছে, সে তদন্ত হোক। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरु। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल बाजार इलाके के फुटपाथ पर सालों से हॉकर्स दुकान लगाकर दुकानदारी करते हैं, जिसे ग्राहकों का फुटपाथ पर चलना भी मुश्किल होता है। त्योहारों के समय तो स्थिति विकट हो जाती है, लेकिन नगर निगम सालों से और दशकों से केवल बयानबाजी करता है, चाहे वह CPM का ज़माना था या अब तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन बाजार इलाके से फुटपाथ नहीं हटा। वर्तमान समय में नगर निगम चला रहे लोगों का ध्यान इस ओर ना होकर शहर की ऐसी जगहों पर है जहां फुटपाथों से लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यहां भीड़ भाड़ कम रहती। इस तरह एक बार फिर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर नौटंकी शुरू की जा रही है। पहले भी ऐसा किया जा चुका है। मंगलवार को नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में एक बैठक कर गिरजा मोड़ से लेकर जुबली मोड़ तक अवैध दुकानें हटाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मेयर और दूसरे अधिकारियों ने कुछ जगहों का मुआयना भी किया, दुकानदारों को हड़काया और समझाया बुझाया। पता चला कि 2 चरणों में यानी 28-29 अप्रैल को 200 अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे। 28 अप्रैल को गिरजा मोड़ से लेकर BNR मोड़ तक अभियान चलाया जाएगा, जबकि 29 अप्रैल को BNR मोड़ से लेकर जुबली मोड़ तक। अब देखना है कि नगर निगम क्या करता है। लोगों का कहना है कि दिखाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। जहां कैंसर है यानी आसनसोल बाजार इलाका, वहां से क्यों नहीं अवैध अतिक्रमण हटाया जाता।
ये लोगों को आसानी से समझ में आता है क्योंकि बात राजनीति की है, वोट की है। বলার একটাই, আসানসোলকে সুন্দর করতে হবে। যারা হকার যারা বসে আছে তারাও আসানসোলের মানুষ, এবং এখানে সবাই আমরা আসানসোলকে ভালোবাসি, আসানসোলকে সুন্দর দেখতে চাই। তাই আজকে আমরা এটা গত দু মাস থেকে আমাদের চলছে, বিভিন্ন জায়গায় হাঁটিও দেওয়া হয়েছে, এবং এটা আমরা যেহেতু পুজো পরব বিভিন্ন টাইম ছিল, সেগুলোর জন্য আমরা ওয়েট করে তারপর আজকে আমরা বেরিয়েছি। আজকে পুরোটাই দেখলাম আমরা, যেখানে ইলিগাল আছে সেগুলো সবকে ভেঙে দিতে হবে। দোকানদারদের নিজেদের করতে হবে, নাহলে কিন্তু কর্পোরেশন, পুলিশ প্রশাসন সবাই মিলে কিন্তু এটা করবে। বিভিন্ন দোকান দেখা যাচ্ছে কি দখল করে ভাড়া চালাচ্ছে 4-5 ওগুলো কপিগুলো আমরা নেব। যা একজন একটাই পাবে, মানে আমি 5টা নিয়ে থাকবো এটা চলবে না। আরও গরিব ছেলে আছে তারা নেবে। দাদা এটা কোন জায়গা থেকে কতদূর পর্যন্ত? কালকে শুক্রবার দিন আমাদের একটাই করা হয়েছে। শুক্রবার মানে এইখান থেকে শুরু করবে, এখান থেকে শুরু করে একদম যতটা পারবে ভগৎ সিং মোড়, তারপর আবার শনিবার আছে, তারপর আবার রবিবার আছে। বলে যিনি ভাড়া উঠাচ্ছেন ওর উপরে কর্পোরেশন থেকে আইন ব্যবস্থা হবে? কি যিনি ভাড়া উঠাচ্ছিলেন এত বছর থেকে, কত এইটাকে আইনত ব্যবস্থা সেটা তো দেখা যাবে। প্রথমত হচ্ছে ঘরটাকে নিয়ে নেওয়া হবে। না, ফুটপাত দখল উচ্ছেদ করে আপনারা কি করতে চাইছেন? মানুষকে কি বলবেন, কি বার্তা? আসানসোলকে সুন্দর করতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানে আসানসোলকে রাখতে হবে। যে দোকান আছে কিন্তু দোকানের সামনে হয়তো তিরপল খাটিয়ে করে দিয়েছে বা টিনা বসিয়ে দিয়েছে, যেগুলো চলবে না, যেগুলো খারাপ। ব্লক এগুলো চলবে না। যেখানে এখানে প্রধান কথা মানুষের কিছু ভয় এসে গেছে দোকানে, কি আমাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে, আমাদেরকে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যারাই দোকান করছে তাদের ভয়ের কোনো ব্যাপার নাই। আমরাও আসানসোলের, আপনারাও আসানসোলের, আমিও ভালোবাসি আসানসোলকে, আপনিও ভালোবাসেন আসানসোলকে। গরিব মানুষদের যাতে পেটে লাত না পড়ে সেটা নিশ্চয়ই কর্পোরেশন সাথে থাকবে, কিন্তু ইললিগাল যেগুলো আছে ইললিগালগুলো কিছু করা যাবে না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड।